this is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today's topic, chapter number 7, Cubes and Cube Roots from Mathematics Standard 8. So students, I will divide the chapters into two parts. In first part, we will see introduction and some try this and examples 1 to 3. So in remaining parts, we will see the other try this and exercise of chapter number 7. Students, start with chapter number 7, cubes and cube roots. So students, इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 देखा था, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशंस किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में. सो ऑलमोस्ट दोनों एक ही है. जैसे आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, जैसे रूट निकालते थे वैसे आपको क्यूब रूट निकालना है. तो इसमें एक डिफरेंस होगा, स्क्वायर में 2 होता है और क्यूब में 3 होता है. सो इंट्रोडक्शन. दिस इज अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ ग्रेट मैथमेटिकल जीनियसेस एस रामानुजन. सो मैथमेटिक्स के जो जीनियस थे, वन ऑफ द ग्रेट जीनियस एस रामानुजन. Once another famous mathematician, Professor G.H. Hardy, came to visit him in a taxi whose number was 1729. So, two great mathematicians, one is Ramanujan, next one is G.H. Hardy. So, in one day, both of them came to be visit in a one taxi, that the number of the taxi is 1729. While talking to Ramanujan, Hardy described this number a dull number. So रामानुजन से हार्डी बात कर रहे थे, तब उन्होंने बातचीत में बोल दिए ये जो टैक्सी का जो नंबर है वो एक डल नंबर की तरह दिखाई दे रहा है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डल नंबर? अगर अब कोई भी 2 पर्सन्स टैक्सी में या कई जगह बैठ के हैं तो और बातचीत करेंगे. सो इन्होंने सडनली हार्डी ने ये डिस्क्राइब किया है कि जो टैक्सी नंबर है वो एक डल नंबर है. रामानुजन क्विकली pointed out that 1729 was indeed interesting. He said it is the smallest number that can be expressed as a sum of 2 cubes in 2 different ways. So he said, okay, Ramanujan quickly pointed out that the 1729 was indeed interesting. He said it's the smallest number that can be expressed. So the number should be expressed in the sum of 2 cubes. 2 cubes means cube methods in different ways. So first, 1728 plus 1. So यहाँ पे जो नंबर है उसको हम ऐसे अलग करेंगे. So उसमें से हमको एक क्यूब में आना चाहिए. So 1728 plus 1. So सेकेंड मेथड जो है ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 plus 729. दोनों मेथड के थ्रू हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं. अगर हमने 1728 प्लस 1 किए तो 1 का 1 क्यूब भी आता है, और 12 को हम 3 टाइम्स करेंगे सो आंसर 1728 आता है. सो नेक्स्ट हम दूसरे मेथड से उसको सेपरेट करेंगे. सो 1000 प्लस 729. सो 1000 का कौन से नंबर को हम 3 टाइम्स करेंगे सो 1000 आएगा क्यूब. सो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब. 1729 has since been known by as the Hardy-Ramanujan number. Even Taoist feature of 1729 was known more than 300 years before Ramanujan. So इसलिए जो 1729 है उसके नाम है Hardy-Ramanujan number. So next question, how did Ramanujan know this? Well, he loved numbers. All through his life he experimented with numbers. So उनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारे नंबर्स को एक्सपेरिमेंट किया है. So he probably found numbers that were expressed as the sum of 2 squares and the sum of 2 cubes also. So apart from that, they can also express the sum of 2 squares and sum of 2 cubes also. जो स्क्वायर एंड क्यूब्स हम अभी देख रहे हैं तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया है. Apart from that, there are many other interesting patterns of cubes. So एक जस्ट सिंपल से एक स्टोरी था जिसे रामानुजन एंड G.H. हार्डी ने एक्सपेरिमेंट किया है. नेक्स्ट वन मोर इंफॉर्मेशन. Hardy-Ramanujan number
1729 is the smallest odd and emergent number. There are an infinitely many such numbers. Few are 14104, 13832. We will see some more important points and topic of chapter number 6, cubes and cube roots. First, cube. The cube of a number is that number raised to power 3. So जिस तरह आप स्क्वायर में 2 डालते हैं पावर, वैसे ही क्यूब में पावर 3 डालना है. When some number is multiplied thrice by itself, their product is called a cube number. जो भी एक नंबर हो मल्टीप्लाइड थ्राइस, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, सो दे आर कॉल्ड अ क्यूब नंबर. सो जिस तरह आप स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, सो वैसे ही क्यूब में 3 टाइम्स करना है. सो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कैसे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लिखना है. वैसे आप लिखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट. 1 से लेके 30 तक आपको लिखना है. सो पहले इस तरह आप लिखेंगे क्यूब. 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. सो आपको ये चैप्टर्स के नेम लिख के उसके बाद तुरंत यही स्टेप लिखना है, इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8. सो वैसे ही आपको अप टू 30 तक लिखना है. सो नेक्स्ट आप लिखेंगे क्यूब रूट्स का. सो उसमें क्या करना है, जो आंसर है उसको आप क्यूब रूट लगेंगे. सो क्यूब इज इक्वल टू 1. सो नेक्स्ट 8. सो 8, सॉरी यहाँ पे आपको आएगा क्यूब. सो यहाँ पे आपको लिखना है 3. तो इस तरह लिखेंगे, 8 लगा के 3 करेंगे इज इक्वल टू 2. वैसे आपको अप टू 30 तक क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों लिखना है. सो नेक्स्ट 1, 8, 27, 64 आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स. दे आर इनफिनिट क्यूब नंबर्स. सो क्यूब नंबर्स में इन क्यूब नंबर्स दे आर कॉल्ड द इनफिनिट. सो नेक्स्ट वी विल सी क्यूब रूट्स. A number which is multiplied thrice by itself is called cube root of that product. It is denoted by the symbol. ऐसा रूट लगा के ऊपर 3 लगाना है. सो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ. सो एग्जाम्पल, क्यूब रूट 3, 27 इज इक्वल टू 3, क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू 4. सो आपको अप टू 30 तक लिखना है. क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन. अगर क्वेश्चन ऑड है सो उसको बोलते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए. सो आंसर भी ऑड ही होगा. अगर इवन है क्यूब और इसका आंसर भी इवन ही आएगा. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर. सो जो नेगेटिव है, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है उसका क्यूब भी आंसर नेगेटिव में ही आएगा. So students, in exams I will ask a meaning of cube and cube root also. So students, in your notebook please write down the important points. So next अभी यहाँ पे हम टेबल्स देखते हैं. यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. सो 0 का तो 0 आता है, 1 का 1. सो यहाँ पे यूनिट डिजिट है तो उसमें क्यूब में जो अभी क्वेश्चंस यहाँ पे जो दे रहे हैं उसका क्यूब फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर में यूनिट डिजिट में है उसका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है. सो 2 का तो अगर 2 को हम 3 टाइम्स करेंगे सो आंसर 8 आएगा. सो 3 का क्यूब, 3 को हम 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27. सो 3 का क्यूब है 27. सो 27 में जो यूनिट प्लेस में है वो है 7. तो वैसे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है. नेक्स्ट 4 का, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा
64, 16 4 का 64, तो 64 में यूनिट प्लेस में 4 है। सो ऐसे यहाँ पे आंसर्स आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 इट्स क्यूब एंड विथ 3 zeros। अगर कोई भी नंबर 0 में एंड होता है उसका क्यूब भी 3 टाइम्स 0 के साथ ही एंड होगा, स्टॉप होगा। हार्डी रामानुजन नंबर, a number that can be expressed as sum of two cubes in different ways is called Hardy Ramanujan number. So if you can take any number, the number can be expressed as a sum of two cubes. So अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके वो नंबर को आप एक्सप्रेस करोगे एज सम ऑफ टू क्यूब्स, मतलब प्लस होना, सम मीन्स प्लस, एक नंबर को आप टू डिफरेंट तरीके से उसका क्यूब बनाएंगे, सो इट इज कॉल्ड द हार्डी रामानुजन नंबर। सो 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। सो ये भी आपको फिल द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इसे क्वेश्चंस में एक आंसर क्वेश्चंस भी शामिल होगा। सो यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। So among the numbers from 1 to 100, there are 4 perfect cubes, 1, 8, 27 and 64. So 1 से लेके 100 तक सिर्फ 4 नंबर्स ही परफेक्ट क्यूब है। सो ये 1 का है और ये 2 को 3 टाइम्स करेंगे सो 8 आएगा, सो 3 को हम 3 टाइम्स करेंगे सो 27 आएगा, एंड 4 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो 64 आएगा। सो 5 को हम 3 टाइम्स करते तो 5 5 से 25, सो 5 क्यूब करते हैं, so 5 multiply 5, 5 5 से 25, 25 5 जा 125, ये जो 100 के ऊपर है। सो 1 to 100 के अंदर जो परफेक्ट क्यूब्स है वो है 1, 8, 27 एंड 64। एवरी नेचुरल नंबर एज अ क्यूब बट एवरी नेचुरल नंबर डज नॉट हैव अ क्यूब रूट। सो और एक नेचुरल नंबर क्यूब होता है बट ये जरूरी है कि और एक नेचुरल नंबर क्यूब रूट भी होना चाहिए। So please, these are the points, write down in your notebook. Multiplying the square of a number by the number, we get the cube of that number. So कोई भी एक नंबर के ले लो, उसको स्क्वायर, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद उसके साथ वापस अगेन 1 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको क्यूब मिलेगा। एग्जाम्पल, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 का स्क्वायर है 4, मल्टीप्लाइंग 4 बाई 2, सो 4 के साथ हम वापस क्वेश्चन को ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव टू गेट द क्यूब। सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 विच इज द क्यूब ऑफ 2। तो इसलिए स्क्वायर के साथ आप you have to take any number of the square, they multiply that same number, we have to get the cube of the number. If the digit at unit place of a number is 1, 4, 5, 6, 9 or 0, the digit at unit place of the cube of the number is also the same digit 1, 4, 5, 6 or 6, 9 और 0 रेस्पेक्टिवली। अगर आप कोई भी डिजिट ले रहे हो सो उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू है 1, 4, 5, 6, 9 और 0, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर में यूनिट प्लेस भी यही सेम टू सेम नंबर ही रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी दिखाते हैं, 4 का 4 है, 4 का क्यूब क्या आएगा 64, 64 में यूनिट प्लस है 4। वैसे ही 5 का क्यूब, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 में भी यूनिट प्लेस का वैल्यू है 5। If the digit at unit place of a number is 2, the digit at unit place of the cube that number is 8. So अगर यूनिट प्लेस में 2 है और इसका क्यूब होगा 8, 2 का क्यूब होता है 8। अगर आप कोई भी नंबर ले रहे 2 डिजिट का नंबर, सो उसमें यूनिट प्लेस वैल्यू 2 है,
सो 2 डिजिट का आप क्यूब रूट निकालेंगे। सो निकालने के बाद आंसर में जो यूनिट डिजिट होगा तो उसमें 8 कंपल्सरी आएगा। If the digit at unit place of a number is 8, the digit at unit place of the cube of that number is 2। अगर आप कोई भी 2 नंबर्स या 3 नंबर्स ले रहे हैं तो उसमें अगर यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। निकालने के क्यूब रूट निकालने के बाद उसमें जो आंसर आता है उसमें यूनिट प्लेस होगा 2। जो ऊपर जो लिखा है उसका ऑपोजिट होता है नीचे। Same to same, third one, if the digit at unit place of a number is 3, the digit at unit place of the cube of that number is 7। So अगर आप कोई भी 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स ले रहे, 4 नंबर्स ले रहे, so उसमें यूनिट डिजिट 3 है। फॉर एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं हम लोग। और उसमें अगर उसका क्यूब निकालेंगे सो उसमें आपको निकालने के बाद जो आंसर आ रहा है सो उसमें यूनिट डिजिट में 7 होगा। सो ऊपर का ऑपोजिट होता है नीचे। So all the points you can write down in your notebook. If the digit at unit place of a number is 0, the last 3 digit of the cube of that number are 0. So unit place में first 0 है तो उसमें लास्ट भी आपको 3 zeros आएगा। So 10 क्यूब, so 10 में यूनिट प्लेस में 0 है so उसका आंसर लास्ट 3 डिजिट 0 आएगा। 20 क्यूब में 20 20 20 8000। We will start with try this in textbook page number 111. First try this of the chapter number 7. So find the ones digit of the cube of each of the following numbers. So यहाँ पे जितने भी नंबर्स है तो उसमें जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है और जो आपने यूनिट प्लेस में जो नंबर को फाइंड आउट किया है उसका क्यूब निकालने के बाद उसमें क्या वो क्यूब के आंसर में यूनिट डिजिट क्या हो रहा है वो भी आपको लिखना है। सो मैं स्टार्टिंग 2 सम्स आपको करके दिखाती हूँ, उसके हिसाब से आपको 3rd से लेके 8 तक करना है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड का दोनों क्वेश्चंस का देखते हैं। 3331, 8888। सो फर्स्ट ऐसा टेबल रेडी करना है। सीरियल नंबर एंडिंग नंबर या नंबर एंडिंग लिख सकते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें एंडिंग लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन 3331। सो क्वेश्चन में जो यूनिट प्लेस है वो फर्स्ट यहाँ पे लिखना है। सो अभी 1 का अब क्यूब निकालेंगे। सो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। सो उसमें यूनिट प्लेस क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। सेकेंड 8888। सो इसमें एंडिंग डिजिट है 8। सो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, 8 को 3 टाइम्स करना है। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। सो हम 3 टाइम्स करेंगे सो आंसर आएगा 8 8 जा 64। सो 8 को हम 3 टाइम्स करेंगे सो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। सो 8 8 जा 24, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। सो यहाँ पे यूनिट प्लेस में जिसका क्यूब बनाना है सो आंसर आता है 512। सो अभी आंसर में यूनिट प्लेस क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस है 2। सो यहाँ पे लिखना है 2। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है उसका एंडिंग डिजिट लिखना है। एंडिंग डिजिट का क्यूब बनाएंगे, उसके बाद
क्यूब बनाने के बाद जो आंसर आता है उसमें यूनिट प्लेस क्या है वो आपको लास्ट कॉलम में लिखना है। इसे आपको बाकी सम्स भी करना है। In page number 111, cubes and their prime factors. So first, prime factorization of a number, prime factorization of its cube. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करते हैं, सो 4, 6, 15, 12, सो 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 2 से हम शुरुआत करेंगे। 4 यहाँ पे आएगा 2, सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो इन प्रीवियस क्लासेस और इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस किया है प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसका की फैक्टर्स भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशंस किया है। सो यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो लास्ट में इवन नंबर है, सो वो नंबर 2 4 6 8 टेबल में पॉसिबल होगा। नेक्स्ट 3 में देखना है, सो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उनको हम प्लस करके 3 में देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरा वो फुल नंबर्स भी डिवीजन होगा। सो नेक्स्ट 5 का ही मैंने बताया, लास्ट में 0 एंड 5 आना चाहिए। सो लास्ट में 0 एंड 5 है, वो नंबर 5 के टेबल में आएगा। सो ये सब कुछ की फैक्टर्स है टेबल का। सो नेक्स्ट 6 का भी वैसे निकालना है, 15 और 12 से नंबर का है, और यहाँ पे जो दिया है वो है क्यूब। क्यूब हम 64 का निकालेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आएगा। सो क्यूब मीन्स 3 टाइम्स होगा। सो 3 हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। 2 raised to 3 मल्टीप्लाई 2 raised to 3। ऐसे ही क्यूब का फैक्टराइजेशन करना है। So next page number 112, example number 1 is 243 a perfect cube। 243 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। सो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे 243 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सो फिर लाइन लगा के 243 लिखना है। अभी इसमें तो लास्ट नंबर इवन ऑड नंबर है, से 2 की टेबल में पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम ट्राई करते 3 में। सो 3 के लिए हमको क्या ये करना है, सो अगर ये नंबर 3 में पॉसिबल ये है नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए 2 4 3 यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उसको पहले हम प्लस करेंगे। 2 + 4 6, 6 + 3 9। सो 9 3 में आता है कि नहीं आता है, 9 3 में पॉसिबल है। सो 243 भी 3 के टेबल में पॉसिबल है। सो 243 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर आएगा 81। 243, 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 8 24, 0 3, 3 1 3। यहाँ पे जो ऊपर आंसर आ रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे 81 लिखना है। सो नेक्स्ट अगेन 81 में वन ऑड नंबर है, सो 2 के टेबल में आएगा नहीं। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 3 में। 8 + 1 9, सो यस 9 3 में पॉसिबल है। सो 81 भी 3 में पॉसिबल है। सो 3 27 81, अगेन 27 3 में पॉसिबल है। 3 9 अगेन 3 3 लास्ट वन इज 3 1। सो यहाँ पे लिखना है लास्ट में। सो 243 इज इक्वल टू, यहाँ पे जितने भी 3 यहाँ पे आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखना है। 3 को 5 टाइम्स लिखना है। सो उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे 3 टाइम्स 1 पैर हो गया है, बट दूसरे पैर बनाने में हमको 3 यहाँ पे नहीं बचा है। सो यहाँ जितने नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं होता है उसको यहाँ पे लिखना है। 3 × 3 इज लेफ्ट ओवर, देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसा लास्ट में आपको आंसर्स लिखना है। तो ऐसा ट्राई दिस भी है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको ट्राई दिस अपने आप प्रैक्टिस करना है।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. सो 64 परफेक्ट क्यूब या है या नहीं वो आपको देखना है. अगेन 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. सो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद लिखना है 64 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 टाइम्स 2 है, सो 6 टाइम्स 2 लिखना है. और उसके बाद देखना है क्यूब, यहाँ पे जो भी नंबर आंसर आ रहा है वो क्यूब फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्यूब मतलब 3 टाइम्स आना चाहिए. एक ही नंबर 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यस, 2 3 टाइम्स हो रहा है एंड अगेन 2 3 टाइम्स पॉसिबल है. देयरफॉर नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर. ऐसा है कि कोई भी नंबर अलग से नहीं है, मतलब सिर्फ 2 टाइम्स है या 1 टाइम्स, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है. सो इसलिए 64 इज अ परफेक्ट क्यूब. सो ऐसे ही आपको ट्राई दिस है इसका, और ये आपको नोटबुक में लिखना है. सो इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112 यहाँ पे जो ट्राई दिस है, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको 1 and 2 करवाए, वैसे ही इसका भी आंसर्स फाइंड आउट करना है. So next example number 2. Is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. 392 जो है वो परफेक्ट क्यूब है. अगर नहीं है सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको मल्टीपल करना है which is multiplied by 392 and make a perfect cube. So first 392 का हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे. अगर मैंने इसको जो एग्जांपल 1 and 2 में करवाए वही प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ऐसा 392 का फाइंड आउट करेंगे. सो आपको आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. 2 3 टाइम्स है और 7 सिर्फ 2 टाइम्स ही है. सो इसमें 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, एक मल्टीप्लाइड मेथड और एक डिविजन मेथड. दोनों अलग अलग है. अगर मल्टीप्लाइड मेथड होगा तो ऐसा स्टेप्स फॉलो करना है. डिविजन मेथड में इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो इसलिए क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन से मेथड दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड मेथड या डिविजन मेथड. सो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 जो कर रहे हैं वो मल्टीप्लाइड मेथड का है. सो 2 3 टाइम्स परफेक्ट क्यूब हो गया है, बट 7 सिर्फ 2 टाइम्स ही है. सो जो नंबर यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं है उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीपल करना है. सो अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद देखना है सब नंबर्स 3 टाइम्स ये या नहीं. अगर जो नंबर 3 टाइम्स नहीं है उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना है. 392 मल्टीप्लाई 7, इस सेंटेंस आप लोग को नहीं लिखना है. इज इक्वल टू अगेन 2 को 2 टाइम्स डालना है और 7 को हम यहाँ पे 7 वापस 3 टाइम्स डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करने के लिए 7 लगा दिए, इसलिए आंसर भी आपको एक बार 7 लिखना होगा. सो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है और 7 भी 3 टाइम्स हो गए. सो अभी 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इन सबको मल्टीपल करेंगे. सो आंसर आएगा 2744 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब. सो 392 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे सो भी आपको आंसर 2744 ही आएगा. सो इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है हैंस, या 10 भी लिख सकते हैं. 10 द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज 7. सो लास्ट में वाला सेंटेंस आपको लिखना है. तो 7 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सो हमको परफेक्ट क्यूब आंसर मिलेगा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 is 553,240 a perfect cube? If not, then by which smallest natural number should be 53,240 be divided so that the quotient is a perfect cube? So example number 2 हमने मल्टीप्लाई मेथड को देखा है. एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे हम डिविजन मेथड. सो अगेन 53,240 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. अगर निकालेंगे तो आंसर ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 भी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई 5.
सो यहाँ पे 2 भी 3 टाइम्स है और 11 भी 3 टाइम्स है, और सिर्फ बचा है 5 यहाँ पे सिर्फ एक ही 1 टाइम है। सो क्या करना है, क्वेश्चन के साथ 5 को डिवाइड करना है और इसमें हमको 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही यहाँ पे क्वेश्चन के साथ जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर यहाँ पे भी ऐड करना है। बट डिवीजन में जो जिसका क्यूब नहीं है उसको सिर्फ डिवाइड करना है और इज इक्वल टू के बाद उसको छोड़ देना है। सो 53,240 इसको हम डिवाइड करेंगे, सो आंसर आएगा 10,648, और इन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो वही आंसर आएगा 10,648। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 53,240 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 5। Therefore, the perfect cube in that case is 10,648. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मेथड डिफरेंट मेथड है वो आपको समझ में आया होगा विथ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो एक्सरसाइज 7.1 एंड 2 ऐसा सम्स है, सो आपको खुद इसमें प्रैक्टिस करना है। सो अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस पहले आपको निकालने को आना चाहिए, अगर वो निकालने को आ गया है सो ये चैप्टर्स बहुत ईजी है।